السلام علیکم۔ سیدھے سینٹر کے پیارے ناظرین ایک اور پر اسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ کہانی سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے مکمل سنیے گا اور شیئر کرتے ہی سبسکرائب کریں ہمارے چینل سیدھے سینٹر کو۔ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ شاکر اپنی بیوی نیلم اور اپنے 3 بچوں پنکی، ببلو اور سارا کے ساتھ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہائش پذیر تھے۔ وہ ایک آفس میں اچھی پوسٹ پر تھے۔ ایک دن ان کے دوست نے ایک عالیشان اور خوبصورت بنگلے کا ذکر کیا جس کا مالک بیرون ملک میں تھا، جس کے باعث اس کا یہ بنگلہ کرائے کے لیے خالی پڑا تھا۔ لیکن اب بنگلے کا مالک اپنا بنگلہ فروخت کرنا چاہتا تھا۔ شاکر کو امید تھی کہ ایسا بنگلہ کروڑوں میں ملے گا، لیکن جب اس کا ریٹ سنا تو حیرت سے اچھل پڑے۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ آفر ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اور انہوں نے وہ بنگلہ نما کوٹھی نہایت سستے داموں خرید لی اور اپنی فیملی سمیت اس میں شفٹ ہو گئے۔ آج اس بنگلے میں ان لوگوں کو آئے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور اس عرصے میں وہ خوش و خرم بنگلے میں رہ رہے تھے۔ شاکر صبح سویرے آفس چلے جاتے۔ بچوں کی سمر ویکیشنز چل رہی تھی، اس لیے وہ گھر پر ہی رہتے تھے۔ پنکی، پنکی بیٹا کہاں ہو؟ نیلم پنکی کو آوازیں دیتی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ پنکی صوفے پر بیٹھی ایک گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ نیلم نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے حیرت سے اس گڑیا کو دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ ڈر گئی تھی۔ پنکی کے ہاتھ میں ایک ہیبت ناک گڑیا موجود تھی جس کے بال کھلے ہوئے تھے اور منہ ایک طرف سے جھلسا ہوا تھا۔ وہ دھول سے اٹی ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت ہی پرانی گڑیا ہے۔ ممی، یہ گڑیا مجھے کھلونوں کی الماری سے ملی ہے نا؟ کتنی یونیک۔ پنکی نے مسکراتے ہوئے گڑیا کی تعریف کی۔ بیٹا، یہ گڑیا بہت پرانی ہے، بابا کے ساتھ جا کر نئی گڑیا لے آنا۔ لیکن ممی، مجھے اس گڑیا سے ہی کھیلنا ہے، میں اس کے کپڑے بدل کر اسے نیا کر دوں گی۔ پنکی نے ضد کی تو نیلم نے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن پہلے کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، نیلم نے کہا تو پنکی اپنی گڑیا کو گود میں اٹھائے ممی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں چلی گئی، اور پھر کھانا کھانے کے بعد پنکی نے اپنی گڑیا کو نئے کپڑے پہنائے، اس کے بال سنوارے اور اس کا منہ صاف کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گڑیا اب بالکل نئی جیسی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے جلنے کا نشان غائب تھا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ پنکی باہر لان میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ پنکی، یہ گڑیا تمہیں کہاں سے ملی؟ مینا نے پوچھا۔ یہ گڑیا مجھے کھلونوں کی الماری سے ملی ہے، اور پتہ ہے وہاں سے مجھے اور بھی ڈھیر سارے کھلونے ملے ہیں، پنکی نے چہک کر بتایا۔ لیکن پنکی، یہ گڑیا تو… مینا کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بھائی علی نے مینا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مینا، ممی نے منع کیا تھا نا گڑیا کے متعلق بتانے سے۔ کیوں، کیا خاص بات ہے اس گڑیا میں؟ کیا راز چھپا رہے ہو تم دونوں؟ پنکی، وہ دراصل بس تم یہ گڑیا کہیں پھینک دو یا پھر جلا دو یا کہیں گڑھا کھود کر دفنا دو۔ میری ممی کہتی ہیں اس گھر میں آسیب کا سایہ ہے۔ مینا کا انداز ڈرا دینے والا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی اس گڑیا کو جلا دیتی ہوں۔ مینا نے آگے بڑھ کر گڑیا کو آگ لگا دی۔ پنکی، مینا، علی اور ببلو تینوں دائرے کی شکل میں کھڑے جلتی گڑیا کو دیکھنے لگے۔ ویسے مینا، یہ آسیب کیا ہوتا ہے؟ پنکی نے ناسمجھی سے سوال پوچھا۔ اتنے میں مسجد سے مؤذن نے مغرب کی اذان دی تو علی نے مینا کا ہاتھ تھاما اور پنکی کو مخاطب کیا۔ اچھا پنکی، ہم گھر جا رہے ہیں، کل کھیلیں گے، علی یہ کہہ کر اپنی بہن مینا کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف چل دیا۔ پنکی انہیں دور تک دیکھتی رہی۔ اسے اپنی گڑیا کے جل جانے کا زیادہ افسوس نہ تھا، تاہم اسے لفظ آسیب ڈرا رہا تھا۔ رات کو ڈرائنگ روم میں وہ اپنی مما سے یہ سوال کر بیٹھی، ممی، یہ آسیب کیا ہوتا ہے؟ وہ ناسمجھی میں نیلم کی طرف دیکھنے لگی جو کہ اسے حیرت سے گھور رہی تھی۔ بیٹی، آپ نے یہ لفظ کہاں سے سنا؟ ممی، ساتھ والے گھر سے مینا اور علی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس گھر میں آسیب کا سایہ ہے، پنکی نے معصومیت سے جواب دیا۔ بیٹا، آئندہ آپ نے اپنے کسی فرینڈ سے ایسی کوئی بات نہیں سننی، آسیب وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ مد مقابل کرسی پر شاکر صاحب نے برجستہ جواب دیا۔ لیکن ممی، انہوں نے تو میری گڑیا جلا دی۔ پنکی نے جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سارا ہاتھ میں وہی گڑیا پکڑے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ رہی تھی۔ پنکی، یہ لو اپنی گڑیا۔ باہر لان میں بے یارو مددگار بے سہارا پڑی تھی۔ ویسے کوئی چیز سنبھال کر نہیں رکھتی تم۔ سارا نے گڑیا ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دی اور خود کرسی کھینچ کر کھانا کھانے میں مشغول ہو گئی۔ پنکی بیٹا، یہ رہی آپ کی گڑیا، اور خبردار آئندہ مینا اور علی آئیں تو انہیں سختی سے کہہ دینا کہ صرف میرے ساتھ کھیلو، مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ میری ممی نے منع کیا ہے آسیب وغیرہ کی باتیں کرنے سے، اگر وہ ایسی باتیں کریں تو پھر انہیں گھر میں آنے نہیں دینا، سمجھی؟ تمہارا کھیلنا بند کر دوں گی میں۔
मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने गुड़िया को खुद जलाया था। पिंकी ने नीलम को फिर से मुखातिब किया। पिंकी बेटा, खामोशी से खाना खाओ, और अब नो मस्ती नो मजाक, शाकिर ने पिंकी को सख्ती से कहा। पिंकी बजीद रही, लेकिन सबने उसकी बात को इग्नोर किया। रात में पिंकी ने उस गुड़िया को वापस अलमारी में रख दिया और खुद सोने के लिए लेट गई। आधी रात को प्यास की शिद्दत से पिंकी की आंख खुल गई। उसने साइड टेबल पर नजरें दौड़ाई तो देखा शीशे का जग खाली था। वो किचन में पानी की गर्ज से गई तो उसने देखा स्टोर रूम का 0 बल्ब ऑन है, लेकिन मम्मी तो सारी लाइट्स ऑफ कर देती हैं। वो दिल ही दिल में बोली और लाइट ऑफ करने की गर्ज से स्टोर रूम में गई तो उसने देखा स्टोर रूम की दीवार पर किसी औरत का साया है जो किसी बच्चे का गला काट रही है। अचानक दीवार पर खून की छींटें गिरी, फिर खून से किसी ने दीवार पर लिखा, चले जाओ, ये मेरा घर है, तुम सबको मार दूंगी। खौफ से पिंकी की चीखें निकल गईं, जिसने घर के दरो दीवार हिला दिए। क्या हुआ पिंकी बेटा? उसकी माँ दौड़ती हुई आई। वो अपनी माँ से लिपट गई। मम्मी, वो खौफ से थर थर कांप रही थी। मम्मी, वो सामने दीवार पर खून है, एक औरत थी जो, वो बमुश्किल हकलाते हुए जुमला मुकम्मल कर पाई। लेकिन सामने दीवार पर तो कोई नहीं बेटा। पिंकी बेटा, आपने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा, पिंकी के वालिद शाकिर साहब ने पिंकी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो पिंकी ने सामने दीवार पर फटी फटी नजरों से देखा। अब वहां कोई भी नहीं था, लेकिन मम्मा, सामने दीवार पर खून की छींटें थी और कुछ लिखा भी था। पिंकी खौफो हरास के आलम में बोल रही थी, पिंकी, आप रात को यहाँ क्या कर रही हो? चलो बाबा की गोद में आओ, बाबा आपको खुद रूम में छोड़कर आएंगे। बाबा ने पिंकी को गोद में उठाकर शफकत से उसका माथा चूमा और उसे कमरे में ले गए। बाबा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने वहाँ कुछ देखा था, सामने दीवार पर किसी औरत का साया जो किसी अपने। पिंकी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शाकिर साहब ने उंगली रखकर उसे चुप करा दिया और उसे थपकी दी। सुलाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक पिंकी की नजर सामने ग्लास विंडो पर अपनी गुड़िया पर पड़ी, जो खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा साइड से जला हुआ था, उसकी आंखों से नीली रोशनी फूट रही थी। पिंकी ने खौफ से आंखें बंद कर ली। वो अब भी कुछ कहती तो कोई यकीन नहीं करता। सुबह शाकिर साहब ऑफिस चले गए तो पिंकी भी लॉन में आकर पौधों को पानी देने लगी। वो रात के वाक़े को भूल गई थी, लेकिन अब भी उसके जहन में कहीं कहीं वो मंजर जरूर था। वो सोच रही थी अब वो दोबारा कभी स्टोर रूम का रुख नहीं करेगी। नई मुलाजमा से सफाई करवा रही थी। नया घर काफी बड़ा था, इसलिए उन्होंने पूरे दिन के लिए मुलाजमा रखी हुई थी, और वैसे भी दौलत की रेल पेल थी। मुलाजिम रखना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। वो मुलाजमा सफाई कर रही थी। अचानक बोली, बाजी, एक बात तो बताएं, आपने ये घर कैसे खरीद लिया? लोगों का कहना है कि ये घर आसेबी है, यहाँ पर किसी जिनजादी का कब्जा है। नीलम ने शाकी नजरों से उसे घूरा। आसेब और आसेबी, क्या मतलब? हाय बाजी, आपको नहीं पता, इस घर में आसेब है। आपसे पहले जो किराएदार यहाँ रहते थे ना। मुलाजमा अब झाड़ू छोड़कर नीलम के करीब आई और कदरे सरगोशियाना अंदाज में बोली, उन सब की मौत हो गई। कोई कहता है उन्होंने खुदकुशी कर ली, लेकिन सुनने में आया है किसी ने तेज धार छुरे से उनकी गर्दन पर वार किया था। उसके बाद ये घर किराए पर नहीं चढ़ता, इसलिए इसके मालिक ने ये घर सस्ते दामों बेच दिया। कोई इस घर में नहीं रह पाता। मुलाजमा ने अपनी बात मुकम्मल की। आसिफ, व्हाट नॉनसेंस, आसिफ वगैरह कुछ नहीं होता, और अगर कोई ऐसा मसला होता भी तो शाकिर को खबर होती, वो ये घर कभी ना खरीदते। और अपना काम करो, फजूल की बातों में ना लगो, बच्चे यहीं कहीं हैं, डर जाएंगे। मुलाजमा दोबारा झाड़ू उठाए काम में मशगूल हो गई। कुछ देर रुकने के बाद फिर बोली, वैसे बाजी, छोटा मुंह बड़ी बात, आप ये घर बेच कर कहीं और चले जाएं। इस घर में कोई ज्यादा वक्त नहीं रह पाता। अगर मेरा शौहर बीमार ना होता और मुझे पैसों का मसला ना होता तो मैं कभी यहाँ काम ना करती। मुलाजमा ने नीलम को देखा, जो अब गहरी सोच में मुब्तला थी। मैं आसिफ वगैरह पर यकीन नहीं रखती, और ना ही शाकिर यकीन रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई जिन्नात नहीं होते, ये सब पुरानी बातें हैं और जाहिलों की बातें हैं। मुलाजमा को रुखसत करके शाम को जब नीलम का रुख किचन की तरफ था, अचानक सारा की दिलखराश चीख ने उन्हें वहीं जमा कर रख दिया। वो दौड़ती हुई सारा के कमरे में लपकी। सारा बेड पर बेहोश पड़ी थी। उसके कमरे की हालत ऐसी थी जैसे अभी अभी तूफान आकर थमा हो। हैरत की बात यह थी कि पूरे कमरे में अखबार फैले हुए थे, जबकि सारा तो अखबार पढ़ती ही नहीं थी। नीलम ने लपक कर सारा को देखा, वो बेहोश पड़ी थी। सारा, सारा बेटा उठो। पिंकी भी दौड़ती हुई नीलम के पीछे कमरे में आई। मम्मी, आप ही को क्या हुआ? वो सारा को बेहोश देखकर बोली। पिंकी बेटा, आप ही को देखो, मैं पानी लेकर आती हूँ। पिंकी सारा पर झुकी हुई थी। एकदम उसकी आंखें पट से खुली। उसने पिंकी को गर्दन से दबोच लिया। मैंने कहा था ना,
चले जाओ, ये मेरा घर है, तुम सब मारे जाओगे। पिंकी ने नजरें उठाकर देखा तो छत से पिंकी की गुड़िया चारों हाथ पैरों की मदद से छिपकली की मानिंद उल्टी चिपकी हुई थी। उसकी आंखों से नीली रोशनी फूट रही थी। पिंकी की हलक को फाड़ देने वाली चीखें सारे घर में गूंज रही थी। नीलम दौड़ती हुई फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल थामे कमरे में दाखिल हुई। पिंकी ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा रखा था। वो नीचे जमीन पर दीवार को लगी थर थर कांप रही थी। सारा बेड पर चित लेटी हुई थी। नीलम ने आगे बढ़कर पानी की छींटें सारा के चेहरे पर डाली। मम्मा, मुझे क्या हुआ था? वो हाथों में सर थामे आहिस्ता से उठी। बेटा, आप बेहोश हो गई थी। नीलम ने पिंकी को गोद में उठा लिया। उसका जिस्म पसीने से शराबोर था। पिंकी बेटा, क्या हुआ था? आपने चीख क्यों मारी? नीलम ने प्यार से पिंकी के सिल्की बालों में उंगलियां फेरी। पिंकी ने पानी पी लिया। मम्मी, मेरी गुड़िया अच्छी नहीं है, वो गंदी गुड़िया है। मैंने इस घर में नहीं रहना, ये अच्छा घर नहीं है। वो ज़ारों कतार रोई जा रही थी। माँ ने उसे गले लगा लिया। एकदम नीलम की नजर पिंकी के चेहरे पर पड़ी। पिंकी के चेहरे पर नीले धब्बे पड़ चुके थे। उसकी गर्दन, बाजू, यहाँ तक कि पूरे जिस्म के हर हिस्से पर नीले धब्बे नुमाया थे। हैरत और खौफ से नीलम की आंखें फैल गई। पिंकी बेटा, तुम्हारे जिस्म पर ये धब्बे कैसे हैं? नीलम के लबों से बेख्तियार जुमला अदा हुआ। पिंकी ने अपने हाथों और बाजुओं पर जब नीले धब्बे निशान देखे तो वो डर गई। मम्मा, बाबा को कॉल करें, ये मुझे क्या हो गया है? पिंकी परेशानी के आलम में बोल रही थी। मम्मी, ये सब मेरी गुड़िया की वजह से हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, इन सब चीजों का भला गुड़िया से क्या ताल्लुक? अभी वो ये कह रही थी कि पूरे घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी और झटके से लाइट चली गई। हर तरफ अंधेरा हो गया। मम्मी, पिंकी डर के मारी नीलम से लिपट गई। सारा, तुम पिंकी का ध्यान रखो और यहीं रुको, मैं टॉर्च लाइट लाती हूँ। नहीं मम्मी, मैं आपके साथ चलूंगी। ओहो पिंकी बेटा, जिद ना करो, चलो आओ, तुम दोनों साथ आ जाओ। वो भी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतर रही थी। पिंकी, सारा, तुम दोनों ऊपर ही ठहरो, मैं टॉर्च लेकर आऊं। नीचे आकर मोबाइल से अपने शौहर को कॉल की और कहा कि जल्दी आ जाइए शाकिर, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। सारा और पिंकी की अभी वही कह रही थी, एकदम किचन से छनाके की आवाज आई, जैसे कोई कांच का बर्तन टूटा हो। मम्मी, मम्मी, ये बबलू की आवाज थी, बचाओ मुझे, बचाओ। वो ये कहती हुई किचन की तरफ गई। बेटा, मैं आ रही हूँ, रुको, मैं आ रही हूँ। जैसे ही चेयर पर उन्होंने एक बच्चे को देखा बैठे हुए, वो समझी वो बबलू है। उस बच्चे ने चेयर पर सर टिका रखा था। क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ? अभी वो उसकी तरफ झुकी रही थी कि नीलम की चीख निकल गई। एकदम सामने अंधेरे में दो नीली आंखें दिखाई दी। टॉर्च लाइट ने वाज़ा किया तो वहां पिंकी की गुड़िया खड़ी थी। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी जो खून से भरी हुई थी। मैंने कहा था ना, इस घर से चली जाओ, ये मेरा घर है, तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। वो गुड़िया गुर्राई। नीलम को अपनी समातों पर यकीन न आया। हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। एकदम पिंकी की गुड़िया ने दौड़ लगा दी। वो नीलम पर हमला आवर हुई। नीलम सोफे के पीछे जा पहुंची। टॉर्च लाइट उसके हाथ से दूर जा गिरी। खौफ के मारे वो थर थर कांप रही थी। पिंकी नीलम के पीछे आ गई। मम्मी, आप कहाँ हैं? वो साकित खड़ी नीलम को देख रही थी। अचानक तेज तेज बारिश होना शुरू हो गई। नीलम जबान को ताला लगाए कोने में सिसक रही थी। सोफे के पीछे छुपी रो रो कर अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांग रही थी। पिंकी नीलम को ढूंढती हुई आगे बढ़ी और ठोकर खाकर लड़खड़ा गई। सामने जमीन पर उसके भाई की लाश पड़ी थी जो साकित हो चुका था। उसके मुंह से एक कर्बनाक चीख निकली। पिंकी के सामने दो नीली आंखें दिखाई दी। पिंकी की गुड़िया ग्लास विंडो के सामने खड़ी थी। वो गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। आज तक इस घर में जो कुछ हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ, और जो कोई इस घर में आया वो मारा गया। तुम सब भी मरोगे, गुड़िया गरजदार आवाज में बोल रही थी। उसने कुल्हाड़ी उठा ली। पिंकी ने कानों पर हाथ रख लिए और आंखें बंद करके आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी। और जब पिंकी ने आंखें खोली तो गुड़िया गायब थी। वो हैरत से इधर उधर देख रही थी। अचानक सामने से शाकिर साहब हाथ में ब्रीफ केस थामे आते दिखाई दिए। पिंकी बेटा, ये लाइट्स क्यों ऑफ हैं? ये सब क्या हो रहा है? पिंकी दौड़ती हुई अपने बाबा से लिपट कर रोने लगी। अभी वो रो रो कर अपने बाबा को बता ही रही थी कि उसने बाबा के पीछे देखा। शाकिर साहब एक डॉक्टर को लेकर लाउंज में दाखिल हो रहे थे। अगर वो बाबा हैं तो ये मेरे साथ कौन है? सेकंड के 1000वें हिस्से में पिंकी के जहन की स्क्रीन पर ख्याल उभरा। उसने सर उठाकर देखा तो वही नीली आंखें चमक रही थी। वो चीख मारकर बहरूपिये से दूर हुई। शाकिर साहब के कदम लाउंज में रखते ही वो बहरूपिया हवा में तहलील हो गया, गुम हो गया। पिंकी बेटा, आपकी मम्मी और सारा कहाँ है? वो सहमी सी सोफे पर बैठ गई। बाबा, वो ऊपर हैं। शाकिर साहब ने सेल फोन की टॉर्च ऑन की
डॉक्टर साहब के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगे। पिंकी सोफे पर सहमी सहमी बैठी थी। एकदम उसकी नजर शाकिर और डॉक्टर के पैरों पर पड़ी। दोनों के पांव उल्टे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर चाबी घुमाकर कोई लाउंज में दाखिल हुआ। इतना अंधेरा क्यों है? नीलम, सारा, सब कहाँ है? शाकिर साहब की आवाज समातों से टकराई। पिंकी खौफ से आंखें फाड़ फाड़ कर अपने बाबा को देख रही थी। एकदम किसी ने तेजधार कुल्हाड़ी से वार किया और शाकिर साहब की गर्दन तन से जुदा हो गई। पिंकी सोफे से नीचे उतरकर धीरे धीरे पीछे को चलने लगी। वार करने वाली कोई और नहीं, पिंकी की गुड़िया थी। सारा आपी। पिंकी ने हल्के से सारा को पुकारा। एकदम सीढ़ियों से लुढ़कती सारा की लाश पिंकी के पांव को छूने लगी। उसकी गर्दन पर भी तेज धार कुल्हाड़ी से वार किया गया था। देख लिया सारा का हाल, अब तेरी बारी है, गुड़िया ने कहा और कुल्हाड़ी को सर से ऊपर किया। अचानक लाउंज में तेज आंधी चलने लगी। तमाम फर्नीचर आंधी की जद में आकर गोल गोल हवा में घूमने लगा। उनका चेहरा बहुत नूरानी था। उन्होंने उस गुड़िया के पास आकर कहा, ए गुड़िया, अब तेरा शैतानी खेल खत्म। तू वो जिनजादी है जो हमारे कबीले को छोड़कर आई थी और यहाँ पर तू इंसानों को मारती फिर रही है। इस बच्ची के पूरे घर को तूने तबाह कर दिया और इससे पहले आने वाले खानदानों को भी। लेकिन आज चांद की 14वीं रात है, पूरा चांद है और तेरा खात्मा होना लाजमी है। ये कहकर उसने कुरानी आयत का विर्द किया और उस औरत ने उसी कुल्हाड़ी से पिंकी की गुड़िया का सर कलम कर दिया। तुम खुशकिस्मत हो, आज पूरे चांद की रात में तुम और तुम्हारी माँ बच गई, लेकिन अफसोस तुम्हारे बाप और तुम्हारी बहन और भाई को हम नहीं बचा सके। पिंकी फूट फूट कर रो रही थी। उसके सामने उसकी बहन, उसका भाई, उसके बाबा इस दुनिया से चले गए और इतनी खौफनाक मौत हुई कि वह आज तक जहनी अजियत में है। पिंकी को पागल खाने ले जाया जा चुका है। उसको जब भी वो मंजर याद आता है वो जोर जोर से रोने लगती है और चीखती है। अब वो घर सुनसान पड़ा है। आज तक उस घर में कोई नहीं आया। कहते हैं फिर कभी किसी ने वो घर नहीं खरीदा, लेकिन एक गुड़िया जिसकी आंखों से नीली रोशनी निकलती है आज भी उस अंधेरी रात में कमरे की ग्लास विंडो में खड़ी दिखाई देती है। वो वही खबीस जिनजादी है